ਗਾਇਸ ਦਾ ਪੀਕੇਡੀ ਬਲੌਗ। ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਵਿੰਦਾਵਨ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1:34 ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਿੰਦਾਵਨ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵਿੰਦਾਵਨ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿੰਦਾਵਨ ਨੂੰ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੇਰੀ 2 ਜਾਂ 2:30 ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰੋਹਿਤ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਘੁੰਮਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਗਲੀਆਂ, ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਡਣਾ ਕੂਦਣਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਲੌਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਬਲੌਗ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣਾ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਬਰਸਾਣੇ ਜਾਂ ਨੰਦਗਾਉਂ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗਾਈਡ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਧਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ, ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, तो फिर चलते हैं ਆਪਾਂ रेल ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ हैं। सो गाइस मैं पहुंच चुके हैं अपने पटियाला के रेलवे स्टेशन। तो हुण अंदर जाके करांगे ट्रेन का वेट, फिर आपां होर कुछ इधर एक्सप्लोर करांगा, माड़ा मोटा भी खान पीन देखांगा जे मिलता कुछ, बाकी फिर आपां मिलते हैं। सो गाइस पहुंच चुके हैं मैं अपना की कहने रेलवे स्टेशन। तो पिछे तुहानूं मेरे दिख रहा होना पटियाला का बोर्ड। तो हुण आपां जावांगे। फिलहाल की घड़ी तां खड़े हैं, वेट कर रहे हैं ट्रेन का। तो टाइम हो चुका है 1:58। तो उस तो बाद फिर देखदा मैं, क्योंकि मैनूं लगता नहीं है लेट ही पहुँचांगा मैं, 12 या 1 तो बज ही जाऊगा। उस तो बाद फिर जाऊँगा। तो देखते हैं किन्ने बजे तक पहुँचते हैं आपां। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਜਰਨੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਲੋਗ 'ਚ ਲੈ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ, ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਵਿੰਦਾਵਨ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਦਾ ਪੀਕੇਡੀ ਬਲੌਗਸ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵੀਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ। ਓਕੇ ਭਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। सो गाइस ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ। तो अपनी ट्रेन आ चुकी है। हम आप ट्रेन के बैठे उतो अगे फिर मैं तुम दिखाऊंगा सारा ब्लॉग। तो फिर शायद वॉइस हो रहा होना, इस टाइम माइक नहीं लगा, तो मैं तुम्हें सारा सब कुछ दिखाऊंगा। सो गाइस मिल चुके मैंने सीट पर, आप बैठ चुके हैं ट्रेन के। फिलहाल की बड़ी ट्रेन रुकी पई है स्टेशन पर। जो चलूगी फिर आप चलांगे। सो गाइस टाइम इज़ 7:39 ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਸਟਿਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਹੈਕਟਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਰ। ਸੋ ਗਾਈਸ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ 9:03। ਤੇ ਫੁੱਲ ਟਾਇਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ हैं। तो जाना वृंदावन, क्योंकि सोच रखा जाना तो जाना। तो फिलहाल की घड़ी तुम देख सकते हो क्यों ट्रेन खड़ी है, क्योंकि उधर हैगी रेड लाइट। जो रेड लाइट होएगी ग्रीन, दैन ट्रेन छुक इस गो, फिर आप चल पावेंगे। तो देखते हैं किन्ने बजे पहुँचाती है मैनू दिल्ली तो वृंदावन। वैसे रह गया 2-3 अप्रोक्स 2 घंटे का रास्ता रह गया। उस तो बाद फिर आप
पहुंच जाएंगे फिर थोड़ा दिखाऊंगा होटल लेना या क्या रूम देखते हैं, कुछ ना कुछ तो लेवांगी जो भी मिले। फिर आप सवेरे पहला अपने गुरु जी के धाम, फिर अपना वृंदावन एक्सप्लोर करांगे, फिर आप मथुरा या कुंज गलियाँ जितने भी दिल किया उत्थे जावांगे। तो बाकी जो गाइड दसेगा उसके मुताबिक चलांगे। तो देखते हैं किमें ना कुछ तो करांगे ही। सो गाइस फाइनली येलो लाइट हो चुकी है, इन्नी देर बाद तो मैं टाइम दिखाया सीगा, तो फिलहाल हुनी येलो ही है, देखते हैं कितनी देर तक ये चलूगी। सो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ वृंदावन, तो टाइम हो चुका है 12:31, तुम देख सकते हो। तो भाजी मेरी लेके जा रहे हैं ट्रॉली, तो मैं निकल चुके हैं स्टेशन तो हुण मैं होटल देखदा या प्रेम मंदिर को लिया किते ना किते, फिर उस तो बाद जाऊंगा सुबह मैं अपने सीधा देवरा बाबा जी के, और उसके बाद फिर घूमेंगे। भाई चल चल के पसीने आ गए, कम से कम 2 किलोमीटर चल चुका हूँ। गुरु पूर्णिमा के चक्कर में ना ये ऑटो वालों को भी अंदर नहीं आने दे रहे, और ये मेरे को बोल रहे हैं कि 5 किलोमीटर तक तो बाहर है ऑटो मेरा खड़ा है जो मेरे को मिलेगा। तो अभी मैं इनके साथ जा रहा हूँ, फिर रूम लूँगा, फिर देखता हूँ। वेलकम गाइस, किदा की हाल चाल। पहुँच चुका मैं वृंदावन दे विच, ते हुण मैं इधर जाके सब तो पहला गुड मॉर्निंग सारिਆਂ ਨੂੰ। आई होप सारे वधिया हो गए, मैं भी वधिया। तो मैं खड़े अपने होटल के बाहर इस टाइम, तो हुण मैं चलिया पहला देवरा बाबा जी दे, जो मेरे फादर साहब जिन्होंने जो मेरे फादर साहब सीगे उन्होंने 45 साल उन्होंने सेवा की है। तो ला सकते हो मीनस कि 45 साल फादर साहब ने मेरे सेवा की है देवरा बाबा जी की। तो पहला मैं उधर मत्था टेकन जा रहा, फिर मैं थोनू आगे ब्रज दी गलियाँ होर बहुत कुछ चीज़ां दिखाऊँगा। तो मैं थोनू मिलवाऊँगा, मैनू ये गलियाँ वगैरह कौन दिखाणगे, वो दिखाणगे मेरे फ्रेंड, मेरे गाइड रोहित पाजी। रोहित पाजी किदा? राधे 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 राधे, ठीक हो? बढ़िया भैया, राधे 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 राधे। और भैया क्या लेके कहाँ लेके जाओगे आज? देवरा बाबा चलेंगे, फिर बंसीवाड़ चलेंगे जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने पहली बार बांसुरी बजाई थी। ठीक है, उसके आगे चलेंगे बांड्री वन, राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान की शादी होगी। ठीक है ठीक है, तो गाइस मिलते हैं, फिर चलते हैं अपा पहले देवरा बाबा जी के। वहाँ पे मैं आपको बहुत बढ़िया और बहुत सुकून में जगह है, पहले मैं माँ के दर्शन कर। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं वृंदावन की गलियों में घूम रहे हैं और इतना बढ़िया नज़ारे ले रहे हैं। और ये मेरे साथ है रोहित भाई, ये मुझे घुमा रहे हैं और राधे राधे बोल रहे हैं सभी को, राधे राधे इनका स्वीकार करें। क्या हमारा वृंदावन में क्या राधे राधे चलता है, मैं आपको बताऊँ। हाँ, हॉर्न नहीं बजाते हम यहाँ पर, साइड भी कहना होगा ना तो राधे राधे कहना होगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे मेरे को एक बड़ी अच्छी बात लगी, जैसे हम पटियाला में हॉर्न मारते रहते हैं, भाई पीछे हो जा पीछे हो जा ना, यहाँ पे हॉर्न की बात ही नहीं है। यहाँ पे पता क्या है, राधे राधे, और वो बंदा विद इन सेकेंड्स वो साइड हो जाता है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी यहाँ की। और बाकी यहाँ का एटमॉस्फेयर तो बहुत बढ़िया है, आपको दिख ही रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ देवरा बाबा जी के, तो फिर वहाँ पे घूम के मैं आपको दिखाता हूँ क्या बनता है। और एक चीज़ बताऊँगा यहाँ मैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये कि मेरे को ना ये लग रहा था कि मौसम ख़राब होगा या कैसा होगा, नहीं भाई बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है। सबसे अच्छी बात है, जैसे आप पीछे मेरे देख ही रहे होंगे भाई क्या मौसम कैसा है, तो मौसम बहुत अच्छा है इस टाइम। और मैं आपको दिखाऊँ यहाँ के, तो गाइस मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ जब मैं निकलूँगा तो ऐसा मौसम हो जाएगा या बारिश वगैरह आनी शुरू हो जाएगी। तो अभी हल्की हल्की बारिश भी पड़ रही है और इतना मज़ा आ रहा है घूम के, मैं बता नहीं सकता। ऊपर से मैं हूँ एक्टिवा पे, तो आपको पता ही है थोड़ा बहुत तो भीगेंगे भी, तो थोड़ा बहुत भीग भी रहे हैं और मज़े भी ले रहे हैं। क्या यहाँ पर भीगना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि वृंदावन धाम ये सबसे प्यारा धाम है। श्री जी का सबसे प्यारा जो धाम बताया है ना, वो वृंदावन बताया है। अच्छा, हाँ जी, तभी कहते हैं वृंदावन आओ तो कान्हा जी के और राधा रानी के दर्शन जरूर करके जाओ। तो हम भी करेंगे, जा रहे हैं पहले देवरा बाबा जी के, फिर वहाँ से घूमते घुमाते आएंगे
अपना बंसी बाट। मैं आपको बंसी बट दिखाऊंगा भैया। बंसी बट वो जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने पहली बार महाराज किया था। तो कहते ये कह रहे हैं बंसी बट जाएंगे जहाँ पे अपना कृष्ण जी ने, भगवान कृष्ण जी ने वहाँ पे राज किया था, खेले थे और बहुत सी चीज़ें हैं वो वहाँ पे देखेंगे। और मैं आपको चैनल के राही दिखाऊंगा और आपने देखना है, एंड तक जरूर है, क्योंकि आप एंड तक देखोगे तभी मेरे को फ़ायदा होगा। अभी मिलता हूँ मैं, बारिश आ गई है तो मिलते हैं इसके बाद। सो गाइस चलते चलते ना ये आ गई थी बारिश, तो मेरे को यहाँ पे रुकना पड़ा। तो मैंने बोला रोहित भाई को कि यहाँ फटाफट रोको पहले। तो अभी रुके हैं, पहले जाते हैं अंदर, तो पहले खाएंगे थोड़ा सा फिर जाएंगे। तो रोहित भाई क्या खाओगे पहले? देखिए भैया हम तो वही जलेबी रोटी वाले। अच्छा, तो मैं तो भाई सिंपल सोबर सा ही हूँ, ज़्यादा नहीं खाऊंगा। राधे राधे भैया। तो अभी यहाँ पे आ चुका हूँ मैं, ये कुछ होटल श्री जी के नाम से है। यहाँ पे मैं खाना लेता हूँ पहले, फिर खाते हैं, फिर बताते हैं। हाँ जी, सो गाइस मैं ना बैठे बैठे ना भाई से 2-3 बातें कर रहा था। तो भाई ने मुझे बताया अभी कि यहाँ पे मतलब कि राधा किचन के बारे में बता रहे थे। तो अब भाई से पूछते हैं अभी क्या समझा रहे थे मेरे को। तो मैंने सोचा कि ये मैं ब्लॉग में भी दिखाऊं, अच्छा लगेगा। तो क्या बता रहे थे भाई साहब आप? भैया यहाँ से 12 किलोमीटर भांडरी वन है। अच्छा, भांडरी वन वो जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान के राधा जी की शादी हुई है। ओह, गुप्त वृंदावन उसको कहते हैं, गुप्त वृंदावन। गुप्त वृंदावन। वृंदावन इसके लिए कहते हैं। नंद बाबा एक दिन गाय चराने के लिए जा रहे थे। अच्छा तो श्री कृष्ण भगवान जो थे ना वहाँ छोटे से थे बहुत। अच्छा तो नंद बाबा डरने लगे ऐसा नहीं हो वो लाला कहीं उड़ जावे। वहाँ पे क्या हुआ, तेज तूफान आंधी बरसात आने लग गई। ठीक है ठीक है, तो नंद बाबा डर गए ऐसा नहीं हो मैं लाला छोटा सा कहीं उड़ जावे। उड़ जाएगा। हाँ जी, हमारी देसी भाषा है, तुम्हें ब्रिजभाषी है, हमारी भाषा ऐसी मिलेगी तुम्हें मिठास। आप ये बता रहे थे कि जैसे ब्रिजवासी एक तो गाली वगैरह निकालते देखो हैं। हमारे ब्रिज की ये पहचान है, जब तक हमारी आंखें नहीं खुलेंगी जब तक हमारे पिताजी हमको गाली नहीं दे देंगे। वो तो मेरे पिताजी भी मेरे को गाली देके ये उठाते ब्रिज की थे। गाली है और ब्रिज की मिठास जी है। जब तक हमको मीठा नहीं मिलेगा जब तक हमारे कोई मीठा नहीं नहीं खुश खाएगा। होगा। हाँ, मीठा खाना अनिवार्य होता है। जब हमारे को रिश्तेदार वगैरह आएगा सबसे पहले हम उसको मीठा खिलाएंगे। अच्छा, हाँ, ये ब्रिजवासी की हो पहचान। गया। हाँ, रिवाज के अलावा ये हमारे क्या होता है, शादी ब्याह होती है ना, एक कम तम मतलब कि एक ये रिवाज हो गया तुम्हारे यहाँ पे भी कि हाँ भाई वृंदावन में मीठा खिलाना है मीठा तो अनिवार्य है। ठीक है। तो भाई मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पर जैसे मीठा खिलाना और बहुत सी चीज़ें मतलब कि हैं। और जैसे कोई इनके यहाँ पे रिश्तेदार आया तो पहले उसको मीठा खिलाएंगे, तब जाके मतलब कि और चाय पानी पूछेंगे। पहले हमारे तो ये होता ना सीधा पानी पूछा, चाय पूछा, कोल्ड ड्रिंक पूछी, नहीं यहाँ पे पहले मीठा खिलाते हैं फिर पूछते हैं, क्योंकि वृंदावन है ही मिठास के लिए। तो पहले तो मिठास ही देंगे ना, तो इसलिए पहले माखन मिश्री और पेड़े ये चीज़ें ज़्यादा चलती हैं यहाँ पे ना। जरूर जरूर जरूर, यहाँ का पेड़ा मशहूर है। पेड़ा मशहूर है, माखन मिश्री पेड़ा वो यही तो मैं खाते आपको थे। बताऊं भैया, माखन मिश्री अब गाय नहीं रही है यहाँ पर। अब माखन मिश्री का काम खत्म हो गया। वो सी गाय नहीं है जो पहले मतलब कि पहले तो क्या लाला हमारा माखन मिश्री का शौक करता था वो तो था। बस। आजकल लोग तो आपको पता है कि इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं देते हैं, वो है वो तो चक्कर में काम कम हो गया है चीज़ों का। बिल्कुल। तो अभी मैं थोड़ा बहुत मतलब कि बैठ के खाना खाने का सोच रहे थे, तो हमने तो भाई मेरे को कुछ बताने लगे, मेरे को अच्छा लगा। मैंने कहा सोचा कि चलो ब्लॉग में भी लेता हूँ ये चीज़, तो मैंने ब्लॉग में लिया। तो बाकी अभी मेरे ख्याल से बारिश शुरू की है, तो खा के चलते हैं, फिर आगे का प्रोग्राम दिखाएंगे हम आपको। बताया था ना मैं देवरा बाबा जी के जा रहा हूँ आश्रम, तो ये हैं वो देवरा बाबा जी जो मतलब कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी बड़े से बड़े दिग्गज आए हुए हैं बाबा के पास। जितने बड़े भी राष्ट्रपति और गृह मंत्री सब जितने भी वो बाबा के पास आते थे। और बाबा ना एक मचाल पर बैठते होते थे, बाबा एक मचाल पर बैठते होते थे और वो मचाल से ही पैरों से दर्शन देते थे। तो सबसे पहले बाबा ने जो हाथ का दर्शन दिया था वो इंदिरा गांधी को दिया था। वो क्यों दिया था? वो इसलिए दिया था कि जा इंदिरा गांधी आई, बोली कि मेरी ना बाबा पार्टी नहीं चल रही है और मेरी पार्टी का मतलब कि उद्धार नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूं। तो बाबा ने उस टाइम पहली दफ़ा मतलब कि पहले टाइम बाबा ने ऐसे किया था, जा आज से तेरी पार्टी राज करेगी। उस टाइम वो कांग्रेस पार्टी थी इंदिरा गांधी की, तो वो जो कांग्रेस पार्टी के लिए बाबा ने जो ऐसे हाथ उठाया, तब से बाबा का ये दर्शन वाला हाथ है। नहीं तो बाबा पैरों से अपना दर्शन देते थे और वो मतलब कि कुछ फुट के ऊपर बैठते थे
वो पैरों से, वो भी दिखाएंगे। वो भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो वो इतनी ऊपर बैठते थे, इतनी ऊपर से पैरों से दर्शन देते थे। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पता नहीं कौन कौन आता था बाबा के पास। और मेरे फादर साहब खुद उनके भक्त रह चुके हैं 45 साल, तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा। जो मैं गुरु शिष्य का बेटा हूँ तो जाऊंगा ही। तो चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ, फिर बाबा के दर्शन कराता हूँ। तो चले राउत भाई। हाँ जी, राधे राधे। राधे राधे। ये है सरकार हमारी, जो बाबा जी के शिष्य हैं, और अभी इनके हाथ में सारा ये धाम का। तो अभी अंदर मतलब कि बाबा जी की मूर्ति है, तो पाठ पूजा करके आए हैं, तो अभी पाठ करने गए हैं बाबा। सो गाइस, ये है बंसी भट्ट। तो मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ वही बंसी भट्ट में क्या है, ठीक है। तो चलते हैं बंसी भट्ट के अंदर। सो गाइस, मैं ना अभी अंदर गया यहाँ पर, और इस पेड़ पे मैंने कान लगाया, तो मेरे को ना ढोलक की आवाज़ आ रही थी इस पेड़ में से। तो मैंने रोहित भाई से पूछा, रोहित भाई मतलब कि इसमें से प्रॉपर आवाज़ आती है ऐसी? जैसा ध्यान करो वैसा आएगी, ध्यान लगाने के ऊपर है बहुत। अच्छा, मतलब कि जैसे बंसी का सोचूंगा तो बंसी की आएगी। आप दूसरी बार जाओगे तो कुछ अलग फीलिंग होगा तुमको। अच्छा, आगे दोबारा देखो क्या फीलिंग होता है। ठीक है, अभी मैं जाता हूँ। ढोलक की तो आती है। तो रोहित जी, कहाँ लेके जा रहे हो अब आप मुझे? ये भैया देखो, ये संतों की कुटिया है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ किसी से किसी को मतलब नहीं है। संत अपने एकांती वार्तालाप में रहते हैं यहाँ पर, कोई किसी से मतलब नहीं है। और जितने भी बाबा देखे वो सब आलीशान में रहते हैं। यहाँ पर आपको लाइट भी नहीं मिलेगी, सिर्फ वृक्ष है यहाँ पर। ये कुटियाओं में रहते हैं, कुटियाओं से बाहर नहीं निकलते हैं बाबा जी। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर वृक्ष ही वृक्ष हैं, पेड़ ही पेड़ हैं। और कोई भी, मेरे को वैसे पीछे एक कुटिया दिखी थी, मैंने दिखाना भूल गया। तो अभी मेरे को रोहित भाई लेके जा रहे हैं, तो रोहित भाई तो निकल गए मेरे से आगे। तो रोहित भाई, कुछ बताएं आप यहाँ का। देखो भैया, ये सबसे पवित्र स्थान है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ संत लोग तपस्या करते हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ पर एक से बड़े तपस्वी मिलेंगे आपको, उनको किसी से कुछ मतलब नहीं है। ठीक है। आप दो तो भला, ना दो तो भी भला। और जितनी जगह आप जाओगे सब आपको मिलेंगे मांगने वाले। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आएगा उसको प्रसाद जरूर मिलता है यहाँ पर। यहाँ पर प्रसाद बनता है। हाँ, आइए इधर आइए। तो गाइस, अभी जैसे मतलब कि जा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर कोई लाइट नहीं है और कुछ नहीं लाइट है। वाइट नहीं मिलेगी। लाइट तो यहाँ पे है ही नहीं, मैंने देख लिया जैसे। तो बस ये कुटिया में रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये देखिए, प्रिय माहौल। ये देखिए गाइस, तो यहाँ पर ये कुटिया बना रखी है बाबा जी ने अपनी, तो यहाँ पर रहते हैं इसके अंदर। तो आगे और दिखाता हूँ मैं आपको। सो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं, ये वो कुटियाँ हैं जहाँ पे बाबा जी सारे रहते हैं। लाइट का थोड़ा बहुत प्रबंध है, जैसे ये पंखा वगैरह, और ये यहाँ पर बाबा जी विश्राम कर रहे हैं। राधे राधे बाबा जी। तो बाबा जी, आप यहीं रहते हो एकांत में अकेले? तो बाबा जी यहाँ अकेले रहते हैं, और भाई बहुत ठंडी इलाका है, और बहुत ज़्यादा मतलब कि पेड़ों की छाएँ हैं। तो वो तो है ही नहीं कि हाँ गर्मी लगे या कुछ लगे। मेरे को गर्मी तब लग रही है क्योंकि पंजाब साइड का गर्मी तो लगेगी ही मुझे। चप्पल नहीं पहन रखी? हाँ, चप्पल नहीं पहन रखी आपने? हाँ, ऊपर से मैंने कि चप्पल नहीं डाल रखी। ये महाराज जी मुझे बोल के लाए हैं, भाई मंदिरों में चप्पल की जरूरत नहीं पड़ेगी, रहन दो, तारो लेके पा के ही मत आओ। अब पता लग रहा है क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी। राधे राधे महाराज जी, ठीक है आप? तो यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं महाराज जी।
क्योंकि जो ये मानसरोवर है और यहाँ का मतलब क्या है ज़्यादातर? हाँ, इसका मतलब ये है भैया, यहाँ से आप जाओगे 8 किलोमीटर मान वो पड़ता है बंसीवट। अच्छा बंसीवट पर पहली बार महाराज हुआ था, अच्छा तो महाराज देखने के लिए हाँ हाँ सारे देवी देवता ऊपर से देख रहे थे। अच्छा तो भोले बाबा और पार्वती मैया का मन किया जाने का। तो वहाँ पे सिर्फ क्या हुआ था, सखियों के लिए एंट्री थी, किसी सगा के लिए एंट्री वहाँ पर नहीं थी। तो भोले बाबा को, पार्वती मैया तो अंदर घुस रही उसमें, हाँ भोले बाबा को बाहर रोक दिया। अच्छा तो भोले बाबा से कहने लगे ललिता और विशाखा, राधा जी की मेन सखी जो है वो ललिता और विशाखा। हाँ जो आपने मुझे एक बारी पहले दिखाया हाँ जी। था। ललिता जो है मैं आपको बताता हूँ, हरिवंशी जी का जो रूप है ना, वो ठीक है ललिता है। ठीक है अच्छा हाँ, और विशाखा जो है वो हरिदास जी। ठीक तो है क्या हुआ था भैया, उनको भगा दिया। तो उनसे कहने लगे आप ऐसा करिए, आप इसके पीछे जाइए, वहाँ यमुना मैया है, अच्छा यमुना मैया के कहिए कि मेरा श्रृंगार करिए। तो यमुना मैया की अरदास लगाई भोले बाबा ने, तो यमुना मैया प्रकट हुई। तो यमुना मैया प्रकट हुई, जब जाके पूरा श्रृंगार किया भोले बाबा का, अच्छा जैसे हमारे तुम्हारे घरों में शादी होती है ना, उस हिसाब से पूरा श्रृंगार होता है लेडीज का, उस हिसाब से श्रृंगार भोले बाबा का जो आपने किया मेरे को पिछले बारी जैसे मंदिर दिखाया था हाँ, गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर महादेव मतलब कि वो वही जो कहानी इससे रिलेटेड है। मतलब कि वो चीज है जो हाँ, हाँ, आपने हाँ। मतलब कि मेरे गोपेश्वर को महादेव जो गोदे दिखाया वहाँ पे दिखाया था। हाँ, हाँ। ठीक है तो क्या हुआ था, जैसे ही गोपेश्वर महादेव एंट्री की अंदर, तो उसके श्री कृष्ण भगवान बोले आओ गोपेश्वरी, भोले बाबा से बोलने लगे आओ गोपेश्वरी। ठीक तो है सारी जो सखी थी ना जी बोलने लगी जी कौन सी सखी है आगे गोपेश्वरी, हम कितनी पुरानी सखी है हमें भूल गए। और लाला और जी लाला ने नहीं सकी पकड़ ली। हाँ तो सखी भागी भागी पहुंची कौन के पास, राधा रानी के पास। कहने लगी देखो लाला तो देखो नई सखी संग लील हो गया। हाँ। उनको नहीं पता था ये गोपेश्वर महादेव है। अच्छा तो हाँ, तो राधा जी वहाँ से रूट कर, राधा जी बंसीवर से रूट कर यहाँ पर मानसरोवर पर आ गए। ये जो कुंड देख रहे हो ना आप, अभी भैया ने आपको दिखाया था बंसीवट। बंसीवट वो जगह थी भैया जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने पहली बार महाराज किया था। तो महाराज किया था, तो भोले बाबा और पार्वती मैया का मन किया ऊपर से आने का। तो क्या हुआ, पार्वती मैया तो अंदर घुस गई, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ सखियों का काम था, वहाँ पर किसी सगा का काम नहीं था। तो भोले बाबा को बाहर रोक दिया। किसने रोका था, ललिता और विशाखा। ललिता सो गाइस ये वो जगह है जहाँ पे कृष्ण जी ने राधा रानी को मनाया था। और ये आप देख ही रहे होंगे दृश्य, राधा रानी बैठी हैं रूठ के और कान्हा जी मना रहे हैं। तो बहुत ही सोना दृश्य है। और मंदिर, भव्य मंदिर के दर्शन कर रहे हो आप इस टाइम।